Pass the journal entries in the books of Nidhi. 2025 April 1st, Nidhi introduced the capital to start the business. That is, in hand she was having 1 lakh rupee. By check she got 5 lakh rupee. So we started business with cash and bank. So the journal entry. This is journal of Nidhi. 1st of January, na? 1st of April 25. Can we just not write April 1? We can write April 1. You can write 2025 April 1st and all that. You can write in this format. Any format is fine. So cash account will be debited, bank account will be debited, and to what? Capital account? 1 lakh cash. I am not writing the narration, but you do know that narration is to be Little. corrected. Done. Next one they are telling me is purchase goods and paid cash 25,000. ठीक है, goods purchase किया and cash का payment कर cash में payment कर दिया. So purchase account debit. April 1 ही है. April 1 ही है. Purchases account debit because it's of goods. To cash account, madam, because paisa is going to go out. The narration over here and you are done. Easy. The next transaction date is 2nd. उसने मुझे बोला है purchase goods of rupees 2 lakh less 10% trade discount from Prabhat and company on the terms that the payment received within 10 days. So cash discount will be allowed 5%. On the payment within next 20 days, 2% will be allowed. So basically, if you receive the payment, then the discount will be given. So today, there is no need for us to give them the cash discount. Okay? Today, you just pass an entry that purchase goods of 2 lakh at the trade discount from this person. तो हम लोग वो सब जब का कुछ करेंगे ही नहीं. अभी कुछ नहीं करेंगे. जब भी वो पेमेंट देने आएगा तभी हम लोग उस टाइम पे कैलकुलेट करेंगे कि कितना दिन हुआ, 10 दिन हुआ, 12 दिन हुआ. अभी एंट्री में खाली हम लोग परचेज का एंट्री पास करेंगे फॉर 2 लाख. So whenever they ask, जब रिसीव होगा तब भी डिस्काउंट देने की बात करेंगे. अभी नहीं. अभी कुछ नहीं अभी कुछ नहीं करेंगे. डिस्काउंट का भी कुछ नहीं करेंगे. ओनली ट्रेड डिस्काउंट रेकॉर्ड करेंगे. है ना? You write and show. Yeah. So here 2nd of April 2025 we are purchasing for Prabhat. So purchasing of goods. Who purchased? We'll at least put trade discount ना. From. हाँ, ट्रेड डिस्काउंट तो हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे हमेशा. But we never record the trade discount, ना बेटा. हाँ, that I know. Prabhat and company account. Direct discount मार के will. Direct discount करके. So 2 lakh minus 10%. Is it 10% of 2 lakh 20,000? 20,000. Yeah. So direct amount is 1 lakh 80,000. Will be recorded on the both the sides. Narration. That's it. That's it. Being and you'll write only. I thought ये तो बहुत complicated होगा ना. कभी-कभी चीजें complicated दिखती है but होती नहीं है सर. Sir, again the 2nd of April issued a check as advance for goods. Means I wanted to buy goods from someone, but he has no trust in us, and he says कि you give us an advance, and then we'll talk about it. So we are giving him an advance. So मेरे पास से पैसा जा रहा है. But they've not said कितना. Oh, they have 1 lakh. है ना? 1 लाख रुपए का एडवांस दे रहे हैं ना हम लोग उसको. So issued a check क्या है? Issued a check ना. So to बैंक हो जाएगा because पैसा बैंक की तरफ से जाने वाला है. And goods account. No, goods account because आपको गुड्स तो आया ही नहीं. इट्स जस्ट एन एडवांस. राइट एडवांस अकाउंट. Oh. Advance goods account लिख सकते हैं. Advance for goods account. Yes. कुछ भी जो सेंसिबल हो आसपास में आप लिख सकते हो. उसमें ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं कि दिस इज द ओनली टेक्निकल टर्म दैट यू गोना यूज. नो, ऐसा कुछ नहीं. करेक्ट है मैडम? नाउ परचेज गुड्स ऑफ रुपीज 2 lakh at 25% trade discount and you paid immediately availing the cash discount of 2%. We'll have to do the rough. हाँ, ठीक है. आप ओरली भी कर सकते हो बट हम लोग रफ कर लेते हैं यहाँ पर. Madam, 2 lakh minus first the trade discount. If I am not wrong, it is 25%, so it is 50,000 discount, right? So 1 lakh 50 is the amount, correct? You are going to avail a cash discount also for how much? For what percent? 2%. 2% cash discount. Na?
and we are paying it off immediately. So 1,50,000 का 2% होगा मैडम. So 1,50% into 2 upon 100, 0 cancel, 0 cancel. The amount is 3,000. So you are going to pay 1,47,000. ये आपको पहले से ही बात पता है कि we never record the trade discount. So We our will record questions this. We will record 3,000. We will record 1,50,000. एकदम जबरदस्त मैडम. मतलब these three will be recorded. Correct. So we have purchased the goods, right? So यहाँ पे हम लोग को लिखना पड़ेगा date is 3rd of April. So purchase account debit 1,50,000 ना मैडम. हाँ. You are going to make the payment so to cash account. अभी making the payment by check ऐसा कुछ बोला है उसने? कुछ भी नहीं बोला and paid immediately बोला तो we'll assume it to be cash. Until unless they are telling me that it is a check वाला payment, हम लोग को assume करना है कि वो cash. Discount allowed है ना? Sir discount receive ना you are making a payment. Sorry. He has allowed a discount है ना? हम तो हमारी बुक्स में एंट्री पास कर रहे हैं. Sales में discount allowed होता है. Done. Easy. The next transaction is on 5th of April. अच्छा, there is one more. Payment was made by bank draft 200 as bank charge. अच्छा सर, this is link. देखो मैंने उसको पढ़ा ही नहीं, है ना? ऐसा मामू है. So we'll make a change. We have to make a bank draft का. We have to make a bank draft. ठीक है? And बैंक ने कितना चार्ज किया आपने को? 200 रुपया. So now what I can do is यहाँ पे थोड़ा सा मैं चेंजेस कर लूंगा. मैंने वो पढ़ा नहीं. ये अमाउंट चेंज हो जाएगा, डिस्काउंट का अमाउंट चेंज नहीं होगा. ये कैश की जगह पे मुझे लिखना पड़ेगा बैंक. ओके, बट यहाँ का भी अमाउंट यस. एंड ये जो है ना, ये जो अमाउंट है मैं इसको नीचे लेके आता हूँ. नाउ लुक एट दिस वेरी केयरफुली. द बैंक इज चार्जिंग मी समथिंग एक्स्ट्रा, राइट? सो विल दैट आल्सो बी माय एक्सपेंस? करेक्ट है. मतलब बैंक के अंदर से मेरा पैसा 1 लाख कैसे हुआ? हम लोग तो निकाल रहे हैं ना. हम लोग पेमेंट कर रहे हैं ना, तो बैंक ने चार्ज किया अपने को. सी बैंक हैज चार्ज्ड अस. बैंक ने अपने को चार्ज किया. सो मेरे लिए खर्चा हो गया 200 रुपया. सो मेरे जेब से 1,47,000 भी जाने वाला है, मेरे जेब से 200 भी जाने वाला है. तो 200 मिल रहा है ना. बैंक अकाउंट को तो 200 मिल रहा है, तो उनके लिए डेबिट ही हुआ. नहीं, ऐसा नहीं सोचेंगे हम लोग सोचेंगे कि हमारे लिए वो एक्सपेंस हुआ कि इनकम हुआ. Your bank charges is your nominal account, not your personal account, बेटा. Okay, here we take bank charges as an expense, not the personal account. समझे आप? This is a good question. This is a good transaction, है ना? पक्का? क्या नहीं समझे आपको? So you had to make a payment of 1,50,000. You did make a payment of 1,50,000, but 1 second. तो टू बैंक अकाउंट कैसे हुआ? टू कैश अकाउंट होगा ना? बैंक ड्राफ्ट ना मैडम, बराबर है? गॉट इट. अब समझा. पक्का ना? हाँ. इधर है, खुदा है. ये परफेक्ट है. हाँ. 5th सोल्ड गुड्स अगेंस्ट कैश. ये बहुत बेसिक है सर. अमाउंट कितना बोला है आपने को? 40,000. 40,000. सेल्स अकाउंट और कैश. सर डेट क्या बोला आपने मुझे? April 5. अगेंस्ट कैश ना, तो कैश टू सेल्स. And sales account will be credit. Sales account is always credit. And the logic also you know about it, because sales is always an income for us. That's why credit. Narration के लिए मैं स्पेस हमेशा छोड़ देता हूँ. मैडम on the 7th वाला, paid amount to Prabhat and company on account. How much are we paying? 1 lakh rupees. Now have a look at this. No, Madam, 40,000. no, 40,000 is for the sold against cash. Okay. Bachi, हाँ. if I just go back to transaction dated April 2nd, they are telling me if I make a payment within 10 days, I get a discount of 5%. Yes or no? Correct. I made the payment on 5th only. मतलब within 10 days I'm making the payment. So will I be entitled to get the discount? 5,000 5%. What? हाँ, जो भी अमाउंट है वो. So डेट आपने मुझे बताया 7th April. 7th के 5th है बेटा? 7th April. Okay. So you have to go back to that. Yeah. No, it's 5th. Sorry. 5th है. कोई नहीं. So Prabhat and company account debit
Cash account will be credited. Am I making the check payment cash में से कुछ बोला है उसने? Cash. कुछ भी नहीं बोला. तो cash ही होगा ना? Yes. Have you written another two? Discount. He is giving a 5% ना बेटा. And cash discount is always recorded, not the trade discount. You had to make him the payment for 1 lakh rupees, but is generous enough to give you a discount for 5%, so you paid only 95,000. The narration, and you are done. Difficulty. समझा. Now, what you do is when the page is you don't have a space now, you go to the new page You write the total. and you write the balance. Now, they take the total and write balance carried forward. And यहाँ पे आ जाएगा balance but forward. Whatever the amount is, you'll just carry it forward. Correct? है? Next. Seventh. Sold goods to Mohit in the terms that cash discount will be allowed 5% on payment within 7 days and 2% payment made तो by ये 30 सब days. तो आएगा ही नहीं. Simple. But we will pass an entry for the sales, right? 50,000. Mohit to sales, है ना? हाँ, Mohit account to sales account. 50,000. पक्की बात है? 11th को they are telling me that the goods have been sold to Karan, 25,000 less 10% trade discount. Amount was received from Mohit after cash discount. मतलब एक ट्रांजैक्शन में दो ट्रांजैक्शन का इंफॉर्मेशन दे दिया है एक पॉइंट में, है ना? सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू सेल. मोहित वाला मतलब 7th मोहित वाला. हाँ, 2% उसको 5% उसको डिस्काउंट मिलेगा बिकॉज इज टेकिंग द पेमेंट विदिन 4 days. हाँ, विदिन 4 days या विदिन 7 days के अंदर. सो पहले तो सेल्स का करंट का एंट्री पास कर दे 25,000 लेस 10% वाला. Current to sales? How will we write two different transactions in one question? No, we'll take a different entry. Na? We'll take a different entry. only. Yeah. I hope this is clear. आपने 10% डिस्काउंट लगाया ना, ट्रेड Yep. डिस्काउंट. Perfect. And we never record the trade discount wala. Only we subtract it. Easy peasy. 2,500 को आपने सब्ट्रैक्ट किया. Yep. On the same date, I am going to make the payment. So I'm going to receive the payment. So cash account will be debited. I am going to give him a मोहित discount. अकाउंट टू मोहित. Yes, and I'm going to give him a discount, right? So now have a look at this. I am making a payment of how much they haven't mentioned. So I think the whole amount is been paid. मोहित से लेना कितना था पहले तो वो देखते हैं. 50,000. एक सेकेंड, आप क्या कर रहे हो अभी? पहले we did करण वाला. करंट वाला that is Now done. amount received after cash discount. तो मोहित से हम लोग का 50,000 लेने का था. हाँ, करेक्ट. But he is generous enough to give us a discount of 5%. अच्छा, उसने पूरा ही अमाउंट हम लोग को पे कर दिया. ऐसा कुछ बोला नहीं है उसने कि कितना अमाउंट पे किया, तो we'll assume that उसने full amount payment किया. In the absence of information, the balance will be what? 47,500. नहीं समझा. आपने 5% डिस्काउंट लगाया. Perfecto. Any difficulty? A very easy question here. No. We are able to do it. ऐसा. बचे on 13 received a check from Karan in settlement of his account and paid the balance amount to Prabhat. अच्छा, received a check from Karan in the settlement. मतलब 21,500 हम लोग ने in settlement इसका भी receive तो कर दिया. अलग अलग. Now Karan से हम लोग को लेना कितना था बेटा? 22,500. How much are we receiving from Karan? 21,500. So we are actually giving him a discount of 1,000 rupees. In settlement बोला ना, तो whenever they are telling that it is in settlement, then the whole amount is been written off and the difference amount will be a discount. Settlement का मतलब वो होता है. Date क्या है मैडम? What's the date? April 13. In settlement का मतलब क्या होता है? Settlement means they will be giving you a discount, cash discount. I had to collect
सम अदर अमाउंट, बट उसने मुझे दिया कितना 21,500 एंड करंट से मुझे पैसा लेना कितना था, आई हैड टू टेक फ्रॉम करंट 22,500. तो we'll write ना cash discount allowed सब कुछ या है। या Subtract होगा इसमें तो। ऑफ कोर्स. मुझे तो लगा था कि ये क्रेडिट में जाएगा। क्रेडिट में तो क्या, करंट, करंट इज No, अ गिवर ऑफ पैसा. discount allowed। हाँ, डिस्काउंट अलाउड विल ऑलवेज बी डेबिटेड एंड डिस्काउंट रिसीव्ड विल ऑलवेज बी क्रेडिट. बिकॉज डिस्काउंट अलाउ में आपका खर्चा होता है, आपका नुकसान होता है, एंड डिस्काउंट रिसीव में आपका इनकम होता है. नहीं, discount allowed will always be debit। Debited and discount receipt will also always be credited. Acha, there is one more transaction in the same point on the same date that paid the balance amount to Prabhat and Electric Company on 13th. Now have a look at this. If we track down the Prabhat transaction, I have received goods of 1,80,000 from Prabhat, है ना? I made a payment of 1 lakh to Prabhat. 1 lakh, हाँ। So मतलब 1,80,000 मैंने No, 40,000 sir। 1 lakh ना बच्ची, सी ओ, हाँ हाँ 1,80,000 का मैंने परचेज किया, जिसमें से मैंने Correct, 1 लाख का correct। पेमेंट हो गया. मतलब 1,80,000 माइनस 1 लाख का पेमेंट इज डन. सो आई एम हैविंग 80,000 का व्हाट, पेंडिंग। परफेक्ट है. उसने क्या बोला मालूम है, द अमाउंट हैज बीन सेटल्ड, द पेमेंट हैज बीन मेड, द बैलेंस हैज बीन पेड, बट वी हैव रेड द क्वेश्चन प्रॉपर्ली. उसने मुझे क्या बोला था, आई जस्ट रेफर इट बैक, दैट द प्रभात इज गोइंग टू गेट अ डिस्काउंट ऑफ 5% if the amount is paid within 10 days. Now we purchased on second. No, 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 no। ये ना यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट बच्ची यहाँ पे, विदिन 10 डेज लग रहा था। बच्ची यहाँ पे देखो, रेट डिस्काउंट तो उसको मिलने वाला ही है, irrespective of he makes the payment or no. बट इनने लिखा ट्रेड डिस्काउंट नहीं, ट्रेड डिस्काउंट वो कैश डिस्काउंट. ट्रेड डिस्काउंट 10% from Prabhat and company on the terms that the payment when received within 10 days he'll get a discount of 5%. मतलब सेकेंड को मैंने परचेज कर लिया तो आई शुड गेट द पेमेंट बिफोर 12th एंड या 12th. और नेक्स्ट 20 डेज तो मतलब 2% कैश। वेरी गुड. तो आई थिंक 20 डेज के बाद ही हो रहा है। 20 डेज नहीं, 10 डेज के बाद में, विदिन 20 डेज तो 2% ही मिलेगा. यू आर राइट, मतलब इट्स आफ्टर 10 डेज। आफ्टर 10 डेज, यस. नहीं समझा, है ना? सो यर 2% एंड 80,000 बचा है ना बच्चा. सो यर 80,000 पे 2%। लवली. सो ऑन 13 ट्रांजैक्शन, ये मैं थोड़ा स्टामा कर लेता हूँ. आई एम रिसीविंग द पेमेंट, अच्छा आई एम मेकिंग द पेमेंट राइट, बिकॉज वी आर द गिवर ऑफ पैसा. प्रभात इलेक्ट्रॉनिक, whatever, Prabhat and Company, Electric and Company, whatever. Prabhat and Company account debit 80,000 मुझे पे करना था. चैलेंजिंग ना, टू कैश अकाउंट बच्ची एंड ऑल्सो टू डिस्काउंट रिसीव. नाउ 1,80,000 था, आपके रेफरेंस के लिख रहा हूँ, मैंने 1 लाख ऑलरेडी पे कर दिया. सो आई एम लेफ्ट विथ 80,000. अब वो 80,000 पे हम लोग का 2%। 2% कैन कैलकुलेट. मैं शॉर्टकट बता दे रहा हूँ आपको मैडम. अभी देखो, this 80,000 ना is 100%. If you want to find out 10% ना, 1010 निकाल देने का. So 80,000 का 10% is 8,000. आपको फिर से 10% फाइंड करना है, 1010, सॉरी 1% फाइंड करना है, तो फिर से 110 निकाल दो. सो 800 विल बी योर 1%. डू यू अंडरस्टैंड दैट? अभी 1 का डबल कितना होता है? 2. 1600. That's what I've written. बट फिर भी आपको लगता है नहीं, आई डोंट लाइक दिस, मेरे को नहीं करने का, टकले मैं नहीं करेगा. शट अप, डोंट कॉल मी टकले. यहाँ पे इट विल बी 2/100. So this 0 gets cancelled, this 0 gets cancelled. So 2 0 0 2 0 0 16.
हाँ वो नहीं करना है अभी, अब बड़े हो गए हो। अच्छा नाउ नाउ नाउ, ये तो हम लोग को सीखना ही है ना, इसमें कोई सेकंड आपके पास में ऑप्शन नहीं है। मैं क्या बोलता हूँ ना, कभी कभी आपको 10% की जगह पे 5% निकालने को बोलेगा, तो हम लोग पहला वाला स्टेप तो वही करेंगे, एक जीरो निकाल के 10% निकाल लेंगे। अरे 800 into 5. सर सर यहाँ पे देखो, नहीं नहीं वो भी नहीं करना है आपके। 10% का हाफ इज 5%, सो 8,000 का हाफ कितना हो जाएगा? 4,000। It's 800 into 5. विच इज 805, बट आपकी मर्जी है ब्रो। अच्छा अगर आपको 15% फाइन करना है, सो व्हाट विल डू, दिस 10 and 5 is going to be 15, so this 4 and 8 is going to be 12, तो 80,000 का 15% विल बी 12,000। ये आपको मेंटल कैलकुलेशन करना है, आपको ओरल कैलकुलेशन करना है मैडम, है ना। चलो 80,000 माइनस 1600 कितना होएगा? 78,400। आई लाइक दैट यू गिव द आंसर सो क्विकली, है ना, वेरी इम्प्रेस्ड। नॉनसेंस। सर हमारे बापू जो है ना चार्टर्ड है बेटा, है, उनका इज्जत रखना है आपने को। अरे तो डजंट मीन मेरे को भी मेंटल कैलकुलेशन आना चाहिए ना? और जीन्स तो वही है। नहीं, अबे नॉट नेसेसरी, यूज यूज मेंटली सब कुछ, ठीक यूज है योर चलो, माइंड, हाँ डू इट. ठीक है, मैं ये वीडियो आपके पापा को भेज रहा हूँ, ठीक है भाई. है ना, ये रिकॉर्ड होता है पता है ना, इसे बेस्ट पार्ट है ये। और मेरे पास ऑप्शन वाला में क्या, अगर मैं कुछ उल्टा सीधा बोल दूं तो मैं कट कर सकता हूँ। सो मैं फॉल्ट में ना, तुम फॉल्ट में रहोगे। ओके चलो, मैं आपको बाद में ब्लैकमेल करूंगा अबाउट दिस, है ना, पहले हम No, लोग आगे it's बढ़ते हैं। okay. I can see this in front of my dad also. There's nothing. There's no सर need उसको to. बेशर्मी बोलते हैं, शट अप, ऐसा नहीं करते हैं। आगे बढ़ो यहाँ पे अभी, चेक रिसीव फ्रॉम करंट डिपॉजिट इनटू बैंक। करंट से चेक मिला था अपने को, रिसीव चेक। भाई ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इतने लोग को क्यों ला रहे हैं हम लोग बीच में? मोहित, ओके करण, नहीं, यहाँ पे प्रभात. यहाँ पे यहाँ पे बचे। हाँ हम लोग ने चेक रिसीव किया है, तो यहाँ पे व्हाट हैपेंस इज, व्हेन एवर रिसीव द चेक ना, तो आप यहाँ पे डेबिट में लिखते हो चेक्स इन हैंड। ये क्या है? ये कब? व्हेन एवर यू रिसीव अ चेक यू राइट चेक्स इन हैंड, ठीक है। एंड नाउ यू हैव डिपॉजिटिंग इट, तो ये जो 2100 का, जो 21,500 का चेक जो है ना, हम लोग क्या करेंगे अभी, इसको डिपॉजिट करेंगे इन दी बैंक ऑन व्हाट डेट, 14th। बट वो करण का तो हम लोग ने इन सेटलमेंट कर लिया था ना, हाँ मतलब 22 चेक को. मिला है, अभी तक अपन ने उसका एनकैश नहीं कराया, अभी जाके हम लोग ने उसको एनकैश कराने के लिए डिपॉजिट किया है। So it is going to be bank account debit to checks in hand. 21,500। एक्चुअली मैंने वो बराबर से पढ़ा नहीं, एंड आई विल शेयर द ब्लेम विथ यू। अरे क्यों नहीं, हम दोनों ही कर रहे थे, तुमको ध्यान रखना चाहिए था, है ना, हमारा उसमें टेक्स्ट बुक है, मैं क्यों पूरा मुझे ब्लेम याद दूँ। आएगा कि मुझे मुझे कैसे पता कि मुझे चेक या करना जो है. भी हो whatever, we are sharing the blame, that's it। आगे देखो। बैंक चार्ज तो 200 रुपया बैंक का अरे यार ये चार्ज. बहुत इजी है यार, अभी अपन ने पहले भी किया था, बैंक चार्जेस एंड एक्सपेंस फॉर अस। डेट क्या बोला आपने मुझे? April 20. वही है तो क्या? So bank charges account debit to what? बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट. बिकॉज वो बैंक अपने पास घर पे कैश लेके नहीं जाता है, वो अपने अकाउंट में से पैसा निकाल लेता है। अगेन मेरे पास स्पेस नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, आई अगेन गो टू द नेक्स्ट पेज, बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड, करेक्ट है। टोटल लेना पड़ेगा मैडम आपको, आई होप आपने इसका टोटल लेके यहाँ पे लिखा है, फिर यही आपने कैरी फॉरवर्ड किया, फिर अभी इन सबका टोटल लेना पड़ेगा, वो यहाँ लिखोगे, एंड जो भी इसका अमाउंट है गो टू द नेक्स्ट पेज। करेक्ट है ब्रो, तो छोटू सा विल मेक एन जर्नल, छोटू सा, मतलब बड़ा नहीं। आई थिंक आई दैट नैक, यू नो, मेरा तो लाइन एकदम स्ट्रेट बनता है। हाँ हाँ. बैलेंस बहुत फॉरवर्ड, चला पड़े। बल. अरे यार दो है और, ठीक है। इंश्योरेंस प्रीमियम. पेड फॉर इंश्योरिंग द गुड्स 2500, तो ये हमारा खर्चा है। इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ऐसा ना, इंश्योरेंस प्रीमियम एक्सपेंस।
देन आता है पेड सैलरीज टू चेक टू क्या स्टाफ बाय बात है, पेड सैलरीज टू सब। डेट क्या बोली आपने मुझे? April 30 सैलरी अकाउंट बाय बैंक टू बैंक एट लास्ट सर वी आर एट द एंडिंग वाला ट्रांजैक्शन। 20,000 हाश, आता आपलं झाली। टोटल तुम्हाला करायचं आहे? थँक्यू। कैलकुलेटर इसके से कर लेते हैं। नो नो, वो तुम करना बाद में, मैं तो नहीं करने वाला। सो दैट्स द सॉल्यूशन, दिस इज द क्वेश्चन, आपके टेक्स्ट बुक का है, दिस इज योर सॉल्यूशन। इसको पॉज करके आप उसको मस्त वाला लिखेंगे आराम से बैठ के। ये आपका वर्किंग नोट है एंड ये आपका लास्ट का टू ट्रांजैक्शन, आपको टोटल लेना है एंड यू आर डन। परफेक्शन। राइट देन नोटबुक इज होमवर्क।